Now we are going to do journal entries for our admission chapter. In admission, we have learned how to work out the sacrifice ratio when the new partner is coming in. What we need now, with the help of the ratio, we have to write the journal entry so that in the capital account we can post those journal and we do our example. So on the page number 206, question 4 of your textbook exercise, you have where the journals are to be passed. See the question 4 of that point number 4. P, Q and R are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Old ratio is given. They maintain their capital account by fixed capital method. It means all adjustments to be given to current capital account. They admitted S as a new partner. S brought cash 50,000, furniture 40,000, motor car 60,000 as his capital and share of goodwill. Everything he brings in the form of all the assets what he is bringing. That includes two aspects, capital also as well as goodwill also. Goodwill is valued at 2,40,000 at the time of S admission. Goodwill appears in the books of the firm at 90,000. Means two type of goodwill are there. One goodwill that you have old goodwill and the second that is the premium of goodwill. New profit sharing ratio of all the partner is decided 4:3:2:3 means old partner ratio profit loss ratio is given, new profit loss ratio is given. So with the help of formula of your sacrifice ratio you can easily find out the sacrifice done by which partner how much. The old partner withdraw 50% of the goodwill of their share in cash. Old partner also taking half of the goodwill. Those who are sacrificing and getting goodwill, they are withdrawing 50% of the goodwill from business. So let us write the journal entry. Here, first of all, we are going to distribute that old goodwill what exists in the business. So your journal entry number 1, P's capital account, question 4 in that journal number 1. P's capital account debit, you have to distribute in the profit and loss ratio. The ratio is given to us 3:2:1. Then the Q's capital account. Capital account here means the current account you have to assume. Okay. So 30,000. R's, you can write current also. So current capital account debit 15,000 to, that is the goodwill account altogether 90,000. We have distributed the old goodwill in the old ratio 3:2:1. So your narration going to be being the old goodwill distributed among the old partner in the old ratio. So this is your first journal entry you require to pass. Now the second journal, that partner is bringing things in the business. Okay. So what he brings? He brings furniture. Furniture account debit. He brings 40,000. Then he also brings motor car account debit. He brings 60,000. Then he brings cash. So when the partner bring cash and the item together, accordingly we have to write the journal entry. 50,000 towards as capital. Okay, as capital account. 2. He is bringing towards premium of goodwill also. So 2 premium of goodwill account. Premium of goodwill account. Now question is, how much is the capital? How much is the premium of goodwill? In question it is not mentioned how much is that particular portion.
So the total you find out, it is 1,50,000, which includes of two items. 1,50,000 comprises of capital plus that premium of goodwill. ठीक है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल और कैपिटल हमें फाइंड करना है. कैसे करेंगे? द एस पोर्शन इज गिवन. द एस पोर्शन इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो तो आपको मिलेगा एस पोर्शन इज 3/12. So the new goodwill you have calculated at time of admission of an S 2,40,000, उसमें उसका proportion है 3/12. So that gives you amount 60,000. तो आपको दो चीज चाहिए, उसमें से एक चीज मिल गई 60,000. तो बाकी जो बचा वो क्या बचा आपके लिए? That is what your capital. So here 1,50,000 minus 60,000. Premium of goodwill is your 60,000. Minus 1 lakh minus this is equal to 90,000 is your amount of capital. तो आपने पहले गुडविल ढूंढा, टोटल कैपिटल ढूंढी, उसमें से हमने गुडविल का जो हमें हिंट दिया गया है दैट द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज दिस मच. तो हमने वो टोटल गुडविल में से एस का प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन ढूंढा, तो पता चलेगा कि उसकी गुडविल का पोर्शन होता है 60,000. सो टोटल माइनस गुडविल गिव्स यू द कैपिटल. तो ये आपकी दूसरी जर्नल एंट्री हुई. नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? कि बीइंग एस इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ही ब्रॉट फर्नीचर, मोटर कार, कैश टुवर्ड्स द कैपिटल एज वेल एज द प्रीमियम ऑफ गुडविल. नंबर 3, अभी जो कैपिटल वो लेके आया, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो उसने एस ने लाया, दैट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज पार्टनर हु आर गोइंग टू सेक्रीफाइस. नाउ यू हैव old ratio also given in the example, you have new ratio also. अभी वो पूरा वर्किंग हम यहाँ नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आपने सीख लिया है. तो वो वर्किंग आप रफ में करके सेक्रीफाइस किसने किया वो ढूंढ सकते हो. ठीक है, 3 मार्क का डी सेक्शन में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा. तो उसमें आपको जर्नल एंट्री पूछी है, तो जर्नल एंट्री ही हमें लिखनी है. कैसे वो जर्नल एंट्री बनी उसका वर्किंग हमें खुद अपने से करना है. सेक्रीफाइस इज इक्वल टू योर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला लेके. तो वो सेक्रीफाइस हम ये प्रीमियम ऑफ गुडविल क्लोज करेंगे. सो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट. हाउ मच इज द प्रीमियम ऑफ गुडविल? 60,000. 2 हम ये किसको देंगे? हम ये देंगे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपको मिलेंगे पी और क्यू, और उनका रेशियो मिलेगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो रेशियो मिलेगा 2:1. सो 2 पीस कैपिटल अकाउंट, यू कैन से करंट कैपिटल अकाउंट. ओके, कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:1. सो 40,000 and 2 Q's current capital account, that is amount rupees 20,000. तो इस तरह से हमने the premium of goodwill distributed, being premium of goodwill distributed among the sacrificing partner in the ratio of 2:1. okay, तो आप मेंशन करोगे कि 2:1 रेशियो हमने कैलकुलेट किया है और उस हिसाब से उनमें बांट दिया. अभी एक लाइन और लिखी है एग्जाम्पल में, that 50% of the goodwill withdrawn by the partner. तो एक और जर्नल एंट्री बनेगी कि ये जो उनको गुडविल मिली उसमें से 50% वो लेके जा रहे हैं. So we need to write journal entry for that. So the 4th journal entry you are going to write, that is the P's, जिसको मिली वही लेके जाएगा ना. P's current capital account डेबिट 50% ऑफ what? 40,000, मतलब कि 20,000. उसी तरह से Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 20 का 50 मतलब 10,000. और कैसे विड्रॉ कर जाएंगे? कैश से. तो कैश अकाउंट टोटल कितना? 30,000. सो बीइंग
Sacrificing partner has withdrawn 50% of the goodwill from the business. Clear? तो यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर थे पर खाली P और Q ने सेक्रीफाइस किया. उसका मतलब क्या हुआ कि R ने सेक्रीफाइस किया नहीं है. उसका न तो सेक्रीफाइस आ रहा है न तो गेन आ रहा है. R को कोई फर्क नहीं पड़ता है एक पार्टनर ज्यादा आने से. और जो कैपिटल लेके आया द न्यू पार्टनर अलोंग विद द गुडविल, तो हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से आपको स्प्लिट करके फिगर फाइंड करना है. उसके बाद हमने प्रीमियम ऑफ गुडविल जो लेके आया वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दोनों सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को दे दिया. और यहाँ पे वही पार्टनर्स 50% विड्रॉ भी कर लेते हैं तो हमें उन्होंने विड्रॉवल का जर्नल एंट्री भी डाल दिया. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5.4 उसका हमने अभी किया 4 और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन 5. पेज नंबर द सेम 206. X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1:3, the old ratio. Z admitted as a new partner. Z brought 65,000 as a capital and 36,000 as his share of goodwill in cash. यहाँ पे क्लियरली दे दिया है तो जो वर्किंग हमने यहाँ किया था यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. After Z admission, all the partner decided to distribute the profit equally in future. वापस हो गया. ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास है, तो आप आराम से ढूंढ सकते हो कि भाई सेक्रीफाइस किया किसने है. और सिर्फ 2 पार्टनर है X और Y. लेट अस बिगिन विथ पॉइंट नंबर 5. सबसे पहले पार्टनर जो कैश लेके आता है. पॉइंट 1, द पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैश. Cash account debit, he brings 1,01,000. 2, क्यों लेके आता है? Z's capital account. Towards the capital, he brings 65,000. और यहाँ पे towards the premium of goodwill, to premium of goodwill, उसकी तरफ वो 36,000 लेके आता है. So total become your 1,01,000. Being Z bring capital 65,000 and premium of goodwill 36,000. वो आपका नरेशन बनेगा. सेकेंड, द प्रीमियम ऑफ गुडविल जो भी है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है क्लोज करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. और अगर कोई पार्टनर गेनिंग पार्टनर है तो उस पार्टनर को अपने गेन पोर्शन का प्रपोर्शन सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को देना पड़ेगा. जब आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे दैट X इज गेनिंग एंड द Y इज सेक्रीफाइसिंग. सो लेट अस क्लोज द प्रीमियम ऑफ गुडविल. प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट. ओके, बिकॉज X इज द गेनिंग पार्टनर. X कैपिटल अकाउंट डेबिट. आप जब वर्किंग करोगे ना फॉर्मूला से तो आपको मिलेगा टू Y's कैपिटल अकाउंट. Y को फायदा होगा क्योंकि वो खाली सेक्रीफाइस कर रहा है. सो 36,000 जो प्रीमियम ऑफ गुडविल था वो हमने यहाँ पे क्लोज किया. 9,000 क्योंकि X को गेन हो रहा है तो उसका गेन प्रपोर्शन में आएगा 9,000. सो दैट ही हैज टू गिव. To whom he has to give? To the Z, Y. तो Y को कितना मिला? 36,000 X ये प्रीमियम ऑफ गुडविल का मिला जो कि Z लेके आया था और X ने भी उसे 9,000 दिया टुवर्ड्स द गुडविल क्योंकि यहाँ पे X को फायदा हो रहा है, Y खाली सेक्रीफाइस कर रहा है इसकी वजह से. सो बीइंग द प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट क्लोज्ड एंड given transfer to the sacrificing partner. So यो दो जर्नल एंट्री आपको पास करनी है. प्रीमियम ऑफ गुडविल को खोलना और वही प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्लोज करना अलोंग विथ. तो क्या नया था इस पॉइंट में?
इस पॉइंट में नया ये था कि जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो गेनिंग पार्टनर ऑल्सो टू बी डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओनली टू बी क्रेडिटेड. Let us see now point number 6. M and O are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. Old ratio है. They admitted P as a new partner. P brought 40,000 as goodwill in cash. Cash में ही वो लेके आता है. New profit sharing ratio of all the partner decided. Old दिया था, new भी मिल गया. 1:1:2:1. The balance of the goodwill in old firm was 50,000. तो जो ओल्ड फर्म की गुडविल थी वो हमें सारे ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, और जो नई गुडविल है 40,000, वो नई गुडविल हमें जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे उनको क्रेडिट देनी है. अगर कोई गेनिंग पार्टनर हो गया तो वो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, जिस तरह से हमने पॉइंट नंबर 5 में किया है. सो यू हैव द फॉर्मूला, यू हैव द ओल्ड रेशियो, यू हैव द न्यू रेशियो. तो वहाँ तक का वर्किंग आप अपने से करोगे. हम यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6, दैट व्हाट वी आर डूइंग. ओके, क्वेश्चन 6. Question 6 in that journal number 1. 3 पार्टनर है और ओल्ड गुडविल है, तो ओल्ड गुडविल सबसे पहले हम तीनों में बांट देंगे. और कौन से रेशियो में हम बांट रहे हैं? द रेशियो विच इज गिवन 4:3:3. सो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना? गुडविल टू गुडविल अकाउंट. ओके, और टोटल अमाउंट इज 50,000. और कौन से रेशियो में हम दे रहे हैं? 4:3:3. तो बांटेंगे तो 20,000, 15,000 और 15,000 आपका आएगा. बीइंग the goodwill exists in the books of account distributed among the partner in their old ratio. दूसरा, वो गुडविल लेके आ रहा है, जो नई लेके आ रहा है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल हम बोलेंगे. सो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन अकाउंट डेबिट. हाउ मच ही ब्रिंग्स? 40,000 टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट. 40,000 being the new partner brought cash in the form of towards the goodwill. अभी ये जो गुडविल हमें मिली उसे हमें क्लोज करना है. सो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट हमें उसे क्लोज करना है. कितना? 40,000. अब ये उसको किसे देना है? सेक्रीफाइस पार्टनर को. तो अभी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है एम और एन, और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप जब कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 2:1. उसका मतलब क्या हुआ कि ओ को गेन हो रहा है. सो ओ ऑल्सो टू बी डेबिटेड. सो 2 ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट्स विद द 20,000. 2, दो पार्टनर जो है एम्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 एन्स कैपिटल अकाउंट. बच्चों यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो वाला आप ओरली खुद से अपने से करोगे. और यहाँ पे जो सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा है वो 2:1 है, जिसमें कि आपने एम और एन को डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री वैसी है जैसी हमने अगले एग्जाम्पल में की थी. वहाँ पे एक्स को गेन हो रहा था इसलिए उसे डेबिट किया गया. यहाँ पे ओ को गेन हो रहा है इसलिए उसे डेबिट किया जा रहा है. सो हियर द नरेशन व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, बीइंग the premium of goodwill account is closed,
and given to the sacrificing partner along with the share of gaining partner. तो इस तरह से आपको गुडविल के जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस करने हैं. ये आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है जो डी सेक्शन में 3 मार्क में गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है. दैट राइट द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल एट टाइम ऑफ एडमिशन. अब कभी कभी एडमिशन की आती है, कभी कभी रिटायरमेंट की आती है. इसी तरह से हम रिटायरमेंट में भी करेंगे. और दूसरी चीज़ है कि जब तक ये जर्नल एंट्री आप करेक्ट नहीं लिखते हो तब तक आपका कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस सही नहीं आएगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ पे किसके अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है. So this is what all about journal entries of the Goodwill. I hope you all understood. Okay, like the video, share the video and subscribe for the channel. Thank you.